Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I welcome you all in today's online session. As you all know that we are discussing biochemistry, that is chapter number 21, and today we are going to discuss a very important topic, that is lipids. So objective for today's lecture are, today we will discuss what lipids are, what is their structure, the classification of lipids, properties of lipids, that will include physical and chemical properties, and nutritional importance of lipids as well. So let's have a look. First of all, you should know that the word lipid is derived from the Greek word lipos, which means fat. So the first thing that should come to your mind when you hear a word lipid, it must be a fat. Biological lipids are a chemically diverse group of organic compounds which are insoluble in water. You should know that any sort of oils and fats are insoluble in water. ये आप लोगों को पता है, केमिस्ट्री में like dissolves like की एक टर्म होती है. तो water is an inorganic solvent. So and these lipids are organic in nature, therefore they are insoluble in water. They are soluble in non-polar solvents like ether, chloroform and benzene. Again, here you can remember the principle of like dissolves like. Now lipids are hydrophobic in nature due to the predominance of hydrocarbon chain in their structure. याद रखें, they are insoluble in water and they are water repellents. Hydrophobic, phobic means to repel something and hydro means water, तो they are water repellents. पानी में dissolve नहीं होते और पानी को repel करते हैं. So this is a very important character. और इनका ये character क्यों होता है वो आगे जाके मैं डिटेल में explain करती हूँ. So this is the introduction for lipids. Now, unlike protein, nucleic acids and polysaccharides, lipids are not polymers. So this line is sort of confusing or ambiguous for many students, but note down this point, might possible it will be clear when we will discuss this topic in detail, right? So they are the chief storage form of energy. They provide 6-fold as much energy as equivalent mass of ग्लाइकोजन. तो याद रखें, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इन द लेक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कि कार्बोहाइड्रेट्स कैलोरी रिच नहीं होते, उनमें कैलोरीज कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू लिपिड्स. तो लिपिड्स जो हैं दे आर द चीफ स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट्स दे आर रिच इन calories. Fats and oils are the principal stored forms of energy in many organisms. Now, here you have to remember this point that both fats and oils lie in the category of lipids. तो lipids की category में fats भी आ जाती हैं and oils भी आ जाते हैं. Do remember this point very clearly because this is the key point that I will discuss in detail further. Now, the lipids participate in oxidative phosphorylation. Just remember this point. We are not going to discuss this in detail because this is for the students of biology basically, because they discuss this thing in detail. तो आप लोगों ने यहाँ पर मेन चीज़ें याद रखनी हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि fats and oils are the principal stored forms of energy in many organisms, and both fats and oils are the examples of lipids. They are the categories of lipids, you can say. Now, definition: lipids may be regarded as organic substances relatively insoluble in water, soluble in organic solvents, potentially related to fatty acids and utilized by living cells. So you can take it as definition as well, या फिर इसकी introduction के तौर पे इसको ले सकते हैं. ये वही properties हैं जो already मैं बता चुकी हूँ. अब यहाँ पर ही अब आपके जहन में 2 क्वेश्चंस आ जाने चाहिए कि व्हाट आर फैट्स एंड लिपिड्स एंड व्हाट आर फैटी एसिड्स. तो आप इन छोटी छोटी की पॉइंट्स को साथ साथ नोट डाउन करते जाएं. अभी मैं इनको क्लियर करती हूँ स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हुए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैट, ऑयल एंड फैटी एसिड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल you should know that there is a very familiar term, triglycerol, that we discuss while discussing the structure of lipids, राइट. तो लिपिड मॉलिक्यूल्स को आप ट्राइग्लिसरोल्स का नाम देते हैं. ट्राई मीन्स 3 एंड वाई दे आर टर्म्ड एज ट्राइग्लिसरोल नहीं, ट्राई असाइल ग्लिसरोल्स. सो वाई दे आर टर्म्ड एज ट्राई असाइल ग्लिसरोल. इनका स्ट्रक्चर भी नेक्स्ट स्लाइड में, दिस इज़ द स्लाइड दैट आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल, जिसमें आपको इनका स्ट्रक्चर का पता चलेगा एंड यू विल कम टू नो वाई दे आर टर्म्ड एज ट्राई असाइल ग्लिसरोल्स. सो फर्स्टली वी विल रीड आउट दीज lines. That triacyl glycerol
जिनको ट्राईग्लिसराइड्स भी कहते हैं, फैट्स भी कहते हैं, और न्यूट्रल फैट्स आर ट्राई एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरोल्स। याद रखें कि लिपिड्स को जनरली यहाँ पर वो नाम दे रहा है ट्राई असाइल ग्लिसरोल का, और ये होते क्या हैं, दे आर द ट्राई एस्टर्स। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि लिपिड्स के मालिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी बॉन्डिंग है, दैट बॉन्ड इज़ एस्टर बॉन्ड। जैसे आप लोगों ने प्रोटीन को डिस्कस करते हुए देखा था कि प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होता है, इन कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होते हैं। सेम इज़ द केस ओवर हियर कि इन ट्राई असाइल ग्लिसरोल्स, ये जिनको आप लिपिड्स कहते हैं, जिनके आगे से कैटेगरीज फैट्स एंड ऑयल्स हैं, उनके अंदर जो लिंकेज है दैट इज़ एस्टर लिंकेज, और 3 एस्टर बॉन्ड्स बनते हैं, दैट इज़ वाई दे आर टर्म्ड एज ट्राई एस्टर्स। इन ट्राई एस्टर्स ऑफ व्हाट, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरोल्स। तो ये फर्स्ट लाइन है, इस पर बहुत ज़्यादा आपने फोकस करना है कि there are 2 type of molecules that combine together through ester bond to form lipids are triacyl glycerols। और वो कौन से 2 किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल होगा ग्लिसरोल का और बाकी मॉलिक्यूल्स होंगे फैटी एसिड्स के। So far it should be clear to you all that fatty acids together with glycerol form triacyl glycerols, जिनको आप लिपिड्स भी कहते हैं, through ester linkages। दे आर कम्पोज ऑफ 3 फैटी एसिड्स एंड 1 ग्लिसरॉल मालिक्यूल। ठीक है, ऊपर तो आपको कंटेंट्स का पता चल गया कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो बनाते हैं ट्राइसाइल ग्लिसरॉल को या लिपिड्स को, और नीचे आपको पता चल गया क्वांटिटी का, दैट 3 फैटी एसिड्स अलॉन्ग विद 1 ग्लिसरॉल विल फॉर्म अ मालिक्यूल ऑफ ट्राईग्लिसरॉल। एंड ट्राईग्लिसरॉल्स आर ऑफ 2 टाइप। Number A, simple, these contain single type of fatty acids, and mixed contain 2 or more different kind of fatty acids। तो ऑलरेडी मैंने बताया कि एक मालिक्यूल ग्लिसरॉल का होगा और 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स होंगे। वो फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स सेम भी हो सकते हैं, आपस में डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर वो तीनों एक जैसे हैं तो द ग्लिसरॉल, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल दैट विल बी फॉर्म्ड विल बी सिंपल, अदरवाइज इट विल बी मिक्स्ड। Now that slide is the master slide for you all। इसको देखें dear students, on the right hand side you can see single molecule which is containing 3 OH groups. This is termed as glycerol। OL is used for alcohols, and as there are 3 hydroxyl group OH groups, OH अभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, यू विल कम टू नो कि OH या जिसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, ये इंडिकेशन होती है किस चीज़ की, अल्कोहल्स की। ये फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल्स का। तो ये जो मालिक्यूल आपको बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है, एक 3 कार्बन वाला मालिक्यूल है और तीनों कार्बन के साथ OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हुए हुए हैं। तो दिस मालिक्यूल इज़ ग्लिसरॉल। अभी ये जो रेड कलर से मार्क हुई हुई एरियाज़ हैं, अभी आप इनके ऊपर फोकस नहीं करें, यू विल जस्ट फोकस ऑन द मालिक्यूल्स। ग्लिसरॉल के बाद आपके पास 3 डिफरेंट मालिक्यूल्स पड़े हुए हैं। ग्लिसरॉल के हर OH ग्रुप के सामने एक मालिक्यूल पड़ा हुआ है फैटी एसिड का। तो आप देखते हैं कि टोटल कितने मालिक्यूल हो गए फैटी एसिड के, 3। वाई दे आर टर्म्ड एज फैटी एसिड, बिकॉज दे आर हैविंग द ग्रुप COOH। देखें जहाँ पर रेड मार्क आपको नज़र आ रहा है, रेड सर्कल नज़र आ रहा है, रेड सर्कल ये दिखा रहा है आपको कि ग्लिसरॉल का OH ग्रुप और फैटी एसिड्स का हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो आपस में कंट्रीब्यूट करके रिएक्शन बनाएंगे और वो वाटर की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएंगे। और यूं हर एक फैटी एसिड का जो C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन है वो डायरेक्टली बॉन्ड बना लेगा ग्लिसरॉल के कार्बन के साथ। ग्लिसरॉल सॉरी, जो कार्बन नहीं, फैटी एसिड का जो ऑक्सीजन एक बचेगा वो डायरेक्टली बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ। तो आप ज़रा इस चीज़ को फोकस करें। Coming towards the side of the products in this equation, you will see कि dehydration synthesis means removal of water। 3 water molecules eliminate हो रहे हैं और हर water molecule को बनाने में एक हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट कर रहा है फैटी एसिड और एक OH ग्रुप कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्लिसरॉल का मालिक्यूल। बिकॉज देयर आर 3 OH ग्रुप्स अटैच्ड विद 1 ग्लिसरॉल मालिक्यूल, देयरफॉर इट विल कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ 3 वाटर मालिक्यूल्स। तो 3 पानी के मालिक्यूल्स एलिमिनेट होंगे और बाकी जो जितनी भी चेन है अलॉन्ग विद द ऑक्सीजन फैटी एसिड की वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी ग्लिसरॉल के मालिक्यूल के साथ। तो नो आपके पास एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा स्ट्रक्चर बन गया है, बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड बाय 3 मालिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड एंड 1 मालिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, देयरफॉर इट इज़ टर्म्ड एज ट्राई असाइल ग्लिसरॉल या फिर ट्राईग्लिसराइड। और इनके अंदर डियर स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट देयर इज़ अ बॉन्ड C डबल बॉन्ड O
C. So this bond is termed as ester linkage. Kindly note down this particular word ester, because ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम नेक्स्ट इंशाल्लाह वीक से शुरू करेंगे तो उसके अंदर ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप बड़ी डिटेल से आएंगे. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर यू हैव टू प्रैक्टिस, दैट ट्राइग्लिसरोल्स आर एस्टर्स ऑफ ग्लिसरोल्स विद फैटी एसिड्स. यानी ग्लिसरोल का मालिक्यूल जब 3 फैटी एसिड के मालिक्यूल के साथ मिलता है बाय द एलिमिनेशन ऑफ 3 वाटर मालिक्यूल्स, और तो ये आपस में दोनों कंबाइन कैसे करते हैं, थ्रू एस्टर लिंकेज. देयरफॉर जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको आप लिपिड्स भी कहते हैं, उसको आप ट्राई असाइल ग्लिसराइड भी कहते हैं, आप ट्राई असाइल ग्लिसरोल भी कहते हैं, और आप इनको ट्राई ग्लिसरेट्स भी कहते हैं, क्योंकि 8 का वर्ड यूज़ किया जाता है एस्टर्स के लिए. सो द प्रोडक्ट फॉर्म जिसको आप लिपिड कह रहे हैं वो असल में एस्टर है अपनी नेचर के अंदर. सो इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन मैंने कर दी है, बट आई होप दिस इज़ फाइन. नाउ मूविंग अहेड, ट्राई असाइल ग्लिसरोल्स आर नॉन पोलर, हाइड्रोफोबिक इन नेचर एंड आर मेजर फॉर्म ऑफ स्टोर्ड लिपिड्स. ये जो पूरे का पूरा मॉलिक्यूल बेटा आप लोगों के सामने बना था, जिसको मैंने लिपिड कहा या ट्राइसाइल ग्लिसरोल कहा, ये पूरे का पूरा मॉलिक्यूल एज अ होल जो है वो नॉन पोलर होता है और हाइड्रोफोबिक होता है. दीज मॉलिक्यूल्स कंटेन फैटी एसिड्स ऑफ वेरियस लेंथ्स एंड दे कैन बी सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ये देखें, ये आप लोगों के सामने जो 3 फैटी एसिड्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं वो कितने कार्बन वाले हैं, 6 कार्बन वाली चेन है. तीनों के अंदर 6 कार्बन चेन है, लेकिन ये चेन वेरी कर सकती है. इसमें सिर्फ एक चीज़ कांस्टेंट रहती है, COOH ग्रुप. इसके अलावा जितने भी आगे कार्बन लगे हुए हैं उनकी चेन की लेंथ वेरी कर सकती है, 2 कार्बन वाली, 4 वाली, 6 वाली, 8 वाली एंड सो ऑन, राइट. सो इसलिए चेन की लेंथ वेरी कर सकती है. और अगर फैटी एसिड की ये जो चेन है इसके अंदर कहीं भी कोई एक डबल बॉन्ड भी आ जाए तो आप कहेंगे कि ये अनसेचूरेटेड फैटी एसिड है. और अगर पूरी की पूरी चेन में, जैसे कि यहाँ एग्जांपल है, इस एग्जांपल में ये पूरी की पूरी जो फैटी एसिड्स की चेन्स हैं, तीनों चेन्स के अंदर कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं नज़र आ रहा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. डू रिमेंबर दिस पॉइंट व्हेन आई टॉक अबाउट डबल बॉन्ड विद रिगार्ड टू सेचूरेटेड एंड अनसेचूरेटेड, तो मैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात कर रही हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बात नहीं कर रही. तो अगर चेन में कहीं भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए तो आप कहेंगे कि वो फैटी एसिड जो है वो अनसेचूरेटेड फैटी एसिड है. और अगर जैसे आपकी एग्जांपल में शो किया गया है वो कार्बन सिंगल बॉन्ड वाली चेन है सारी की सारी, तो वो सेचूरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं. और देखें आपके पास इन 3 सेचूरेटेड फैटी एसिड से जो बनने वाला ट्राई ग्लिसराइड है, आप इसको कहेंगे फ़ैट. और अगर इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड आ जाता तो ये जो लिपिड या ट्राई असाइल ग्लिसरोल बन रहा है, आप इस प्रोडक्ट को कहते ऑयल. तो याद रखें, ये डिपेंड करता है ऑन द कंपोजिशन ऑफ फैटी एसिड. अगर फैटी एसिड की चेन में कहीं पर भी डबल बॉन्ड आ जाता है तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कहलाएगा कौन सा वाला लिपिड, दैट विल बी टर्म्ड एज ऑयल्स. और अगर फैटी एसिड की चेन में कहीं भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं आता तो यू विल से कि जो प्रोडक्ट बन रहा है ट्राई असाइल ग्लिसरोल या एस्टर या आप इसको लिपिड कह रहे हैं, वो किस कैटेगरी में है, दैट इज़ फैट. सो सेचूरेटेड आर फैट्स एंड अनसेचूरेटेड आर oils. So that was the most important thing I wanted to discuss. Now dear students, to make the idea clear, again जो मैंने फैटी एसिड की बड़ी डिटेल आप लोगों को बताई है अभी, तो फैटी एसिड की कुछ पॉइंट्स यहाँ पर भी लिखे हैं कि फैटी एसिड्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म्स ऑफ लिपिड्स. आप इस लाइन को एक्सक्लूड कर सकते हैं यहाँ से, दिस इज़ गिवन इन द स्लाइड. आप इसको एक्सक्लूड कर दें, आप इसको यूँ ही याद रखें कि फैटी एसिड्स आर द कंपोनेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स. सो दीज आर मोनोकार्बोक्सिलिक straight unbranched carbon chains containing even number of carbon between 4 to 36. तो मैंने अभी बताया कि फैटी एसिड्स जो होते हैं इनका स्ट्रक्चर यूँ होता है कि एक साइड पे COOH ग्रुप लगा होता है और दूसरी साइड पे एक लंबी सी चेन है कार्बन की, और उस कार्बन की चेन में 4 to 36 तक कार्बन हो सकते हैं. फैटी एसिड्स आर आल्सो नोन एज असाइल ग्रुप्स. देखिए, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्योंकि फैटी एसिड को असाइल ग्रुप कहा जाता है, इसलिए जब 3 फैटी एसिड्स एक ग्लिसरोल के साथ मिलकर प्रोडक्ट देते हैं जिसको आप लिपिड कहते हैं, तो उसका नाम रखा जाता है ट्राई असाइल ग्लिसरोल. दैट 3 फैटी एसिड अलॉन्ग विद 1 ग्लिसरोल कंबाइन टू फॉर्म ट्राई असाइल ग्लिसरोल. फैटी एसिड्स आर एम्बीफैटिक इन नेचर. अच्छा, आपने एम्बीफैटिक का वर्ड जो है इसको आपने गूगल करना है. दिस इज़ योर टुडेज़ असाइनमेंट. रोज़ का अब 1-2 क्वेश्चन आप लोग को मैं पॉइंट आउट किया करूँगी सो दैट आपकी इन्वॉल्वमेंट रहे लेक्चर में.
The fatty acids may be free or esterified with glycerol to form triglycerides. So again ये वही चीज़ें हैं that we have already discussed. Now coming towards the saturated fatty acids, बेटे यू कैन गो थ्रू ऑल दीज पॉइंट्स. मैं यहाँ पर सिर्फ इतना बताऊँगी आपको कि अगर कार्बन की चेन के अंदर ये जो फैटी एसिड्स है एक साइड पे तो COOH ग्रुप होगा, बाकी जो चेन है अगर उसमें कहीं पर भी डबल बॉन्ड आ जाता है तो वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, और अगर सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो दैट आर सेचुरेटेड फैटी एसिड्स. और सेचुरेटेड फैटी एसिड्स अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, ये कंट्रीब्यूट करते हैं जब भी ये ग्लिसरॉल के साथ मिलेंगे सेचुरेटेड फैटी एसिड्स तो ये बनाएंगे फैट्स, और जब भी अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स मिलेंगे तो दोज विल फॉर्म ऑयल्स. सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. देखें ऊपर जो फैटी एसिड है ये एक मालिक्यूल फैटी एसिड का उसने शो किया हुआ है जिसके एक साइड पे C डबल बॉन्ड OOH, यानी कि ये जो अलहदा से उसने शो किया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पर, दिस इज़ द COOH ग्रुप जो एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड की इंडिकेशन होता है. ये फंक्शनल ग्रुप है. बाकी सारी की सारी कार्बन चेन है और उसमें कहीं भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है. ऊपर वाली डायग्राम में बात कर रही हूँ. सो दैट इज़ वाई इट इज़ टर्म्ड एज सेचुरेटेड फैटी एसिड. और नीचे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है बिकॉज पूरी की पूरी चेन में एक जगह पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपको शो हो रहा है. तो अभी तक आप लोगों को बेटा ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो ऊपर वाले फैटी एसिड्स हैं ये अगर कंबाइन कर जाते हैं तो ऐसे 3 मालिक्यूल्स ग्लिसरॉल के साथ तो ये क्या बनाएंगे, फैट्स. और अगर नीचे वाले फैटी एसिड्स जैसे 3 मालिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं ग्लिसरॉल के साथ तो दे विल कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल्स. तो अगेन दीज आर द सेम थिंग्स. आप लोग इन डिटेल्स को पढ़ सकते हैं. और दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. यू कैन गो थ्रू दीज डिटेल्स. जो चीज़ समझाने वाली थी वो मैं कर चुकी हूँ. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द फंक्शंस ऑफ लिपिड्स, दे सर्व एज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल्स. फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल की फॉर्म में ये एनर्जी को स्टोर करते हैं. दे सर्व एज अ ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल. ये ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले करते हैं. दे प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द मेम्ब्रेन. बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि लिपिड्स के मालिक्यूल जो फैट्स और ऑयल के मालिक्यूल्स हैं ये इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रोल एक्सेट्रा ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं. आपकी बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट ट्रिलियंस ऑफ सेल्स. तो हर सेल की मेम्ब्रेन है और उस मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रोल के लिपिड के मालिक्यूल्स मौजूद होते हैं ताकि उस मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल्स हो सके. They have protective function in bacteria, plants, insects and vertebrates, serving as a part of outer coating between the body of the organism and the environment. It serves as a pigment, carotene, hormones like vitamin A and D, signaling molecules and factors like vitamin E, K and lipid quinones and detergents like bile salt etc. तो ये डिफरेंट इसके फंक्शंस हैं. ये मेरी रिकमेंडेशन है आपको कि आप उन्हीं फंक्शंस पर फोकस करेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स. डियर स्टूडेंट्स, एक तो चीज़ मैं बता चुकी हूँ कि लिपिड्स की 2 मेन कैटेगरीज फैट्स और ऑयल्स होती हैं जो मैं बता चुकी हूँ आपको. अदर देन दैट दे आर ऑल्सो क्लासीफाइड इनटू different categories on the basis of their chemical composition, and here are these 3 categories: simple lipids, compound lipids and derived lipids. So simple lipids, these are the esters of fatty acids with various alcohols. Number B, these are the esters of fatty acid with alcohol and possesses additional groups also, जिसको आपकी बुक में radicals कहा गया है. यानी फैटी एसिड्स और अल्कोहल का मालिक्यूल कौन सा हुआ, ग्लिसरॉल, जिसका मैंने जिक्र किया बिकॉज उसके अंदर 3 OH ग्रुप्स थे और OH फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल का. देयरफॉर जब अल्कोहल यहाँ पर बात की जा रही है तो वो ग्लिसरॉल की ही बात कर रहा है. तो इन दोनों के अलावा अगर सिर्फ ये 2 मिलकर बना रहे हैं तो दोज विल बी सिंपल लिपिड्स. अगर इनके अलावा कोई और एडिशनल ग्रुप भी है दोज विल बी कंपाउंड लिपिड्स. एंड दीज and the third category is derived lipids. These are the substances derived from simple and compound lipids by hydrolysis. अगर आप simple और compound lipids की hydrolysis करते हैं break down through water तो उससे जो components निकलते हैं उनको derived lipids कहते हैं because they are derived from lipids. तो ये डिटेल्स हैं. यू कैन गो थ्रू दीज स्मॉल डिटेल्स क्योंकि मेन चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इनमें. तो आप इन स्लाइड्स को गो थ्रू करें. आपने बुक का कंटेंट भी पढ़ा है. एंड देन इफ़ यू विल हैव एनी क्वेरी काइंडली लेट मी नो अबाउट दैट. बिसाइड्स दैट हेयर इज़ अ टाइप ऑफ फैटी एसिड्स. ये ऑलरेडी वही टाइप्स एंड डियर स्टूडेंट दिस इज़ एन एडिशनल स्लाइड. दीज आर द फैटी एसिड्स ऑफ फॉर फैट्स एंड ऑयल्स.
for example saturated and unsaturated fatty acids that I have already explained. There is one thing that has not been mentioned in this slide, and that is a very very important short question जो पेपर में बार बार पूछा जाता है कि what is the difference between essential and non-essential lipids. Kindly note it down, what is the difference between essential and non-essential lipids. So dear students, those lipids which are not produced by our body and are essential for its functioning, वो यानी कहने का मतलब है कि ऐसे फैटी एसिड्स जो हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी हैं, असेंशियल हैं, बट अवर बॉडी डज़ नॉट प्रोड्यूस दोज फैटी एसिड्स, तो हमारे लिए ये एसेंशियल हो जाता है कि हम अपनी डाइट में उसको खाएं, उसको लें। यानी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करी तो बाहर से डाइट के ज़रिए उनका लेना ज़रूरी हो जाता है। तो दोज आर एसेंशियल लिपिड्स, एंड दोज लिपिड्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी for its proper functioning and the body produces it by itself, और हमें डाइट में उनको खाने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे लिपिड्स को कहते हैं नॉन एसेंशियल लिपिड्स। अच्छा स्टूडेंट्स, पेपर में अमूमन एक मिस्टेक करते हैं आप लोग, वो ये कि जब आपसे क्वेश्चन किया जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड लिपिड, तो आप कहते हैं कि ऐसे लिपिड्स जो बॉडी के लिए ज़रूरी हैं वो एसेंशियल हो गए, सॉरी एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल लिपिड्स से पूछा जाता है, तो आप कहते हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं वो एसेंशियल हो गए, जो बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं होते वो नॉन एसेंशियल। तो ऐसा नहीं है, बोथ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल टाइप ऑफ लिपिड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द बॉडी, दे आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, दे आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। बस फ़र्क ये है कि वो जिनको बॉडी खुद प्रिपेयर कर लेती है और हमें बाहर से अपनी डाइट के थ्रू उन्हें खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल लिपिड्स, और वो जो बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती और हमें अपने डाइट में उनको खाने की ज़रूरत होती है, वी हैव टू टेक देम फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स थ्रू अ डाइट, तो उनको आप कहते हैं एसेंशियल लिपिड्स। इनकी एग्जांपल आपकी बुक में मेंशन है, यू कैन कंसल्ट फ्रॉम देयर। Now these are the physical properties, you can go through these physical properties, I have already explained them briefly कि water insoluble होती हैं and etc. Now these are the chemical properties, I would like to elaborate these chemical properties because this is a very important point. बेटे केमिकल जो आपकी बुक में मेंशन है रिएक्शंस वो 3 हैं। वन इज़ हाइड्रोलिसिस, दैट दे आर हाइड्रोलाइज्ड इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय द एक्शन ऑफ सुपर हीटेड स्टीम, या फिर एसिड और एल्कलीज। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कोई भी चीज़ को हाइड्रोलाइज किया जाता है तो उसकी ब्रेक डाउन होती है। हाइड्रोलाइज मींस ब्रेकिंग डाउन समथिंग बाय द एडिशन ऑफ वाटर। तो आप अगर इसमें वाटर का एक मालिक्यूल 3 मालिक्यूल्स ऐड करते हैं तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। ये बिल्कुल वही स्लाइड है जो मैंने शुरू में आपके साथ डिस्कस की थी कि 3 फैटी एसिड के मालिक्यूल जब एक ग्लिसरॉल के साथ मिलते हैं तो 3 वाटर मालिक्यूल्स एलिमिनेट होंगे और एक ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बनेगा। उसी चीज़ को आप रिवर्स कर दें कि एक ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल आपके सामने है, अगर आप इसमें 3 वाटर मॉलिक्यूल्स वापस से ऐड कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जिसको आप लाइपेज कह रहे हैं, तो क्या होगा कि रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। 3 फैटी एसिड आपके पास आ जाएंगे और एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल। Now coming towards sponification, this is a very important short question regarding your exam. Sponification is used for the formation of soap. ये soap formation है। होता क्या है कि जब आप एक ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को, जो मालिक्यूल आपके सामने है, आप 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड के मालिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं बच्चों, तो क्या होगा कि यू विल गेट 1 ग्लिसरॉल और आपके पास 3 मालिक्यूल आ जाएंगे सोडियम सॉल्ट के, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड जिसको कहते हैं। अच्छा, ये तो एक स्लाइड है, आप शायद इसके रिएक्शन से आपको इतना क्लियर ना हो रहा हो, बट द वन गिवन इन योर टेक्स्ट बुक इज़ वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर। आपके साथ, आप मेरे साथ वो डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको समझ ना आए। एंड बिसाइड्स दैट इफ़ इट विल बी इम्पॉर्टेंट तो मैं आप लोगों के साथ उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूँगी। उसमें क्या है कि 3 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्ट करते हैं ग्लिसराइड के मालिक्यूल के साथ, और यू विल गेट 1 ग्लिसरॉल एंड 3 मालिक्यूल्स ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। और ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड हैं डियर स्टूडेंट्स, दोज आर टर्म्ड एज सोप। सो देयरफॉर दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज स्पोनिफिकेशन। नाउ द लास्ट वन इज़ द हाइड्रोजनेशन आर हार्डनिंग ऑफ ऑयल। ये बात आप याद रखें कि इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इफ़ यू पास द हाइड्रोजन गैस व्हाट विल हैपन कि एक अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो है या अनसेचुरेटेड लिपिड जो है उसको आप सेचुरेट कर सकते हैं बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। तो क्योंकि वो डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाता है और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो जाते हैं,
तो आप ये कहते हैं कि अनसेचुरेशन ख़त्म हो गई, अब वो सेचुरेट हो गया सारे का सारा। और आप ये जानते हैं कि सेचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं फ़ैट्स बनाने में। देयरफॉर आप ये कहते हैं कि अगर आप एक अनसेचुरेटेड ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को लें और उसमें से हाइड्रोजन गैस को पास करें इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो व्हाट विल हैपन, वो अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। डबल बॉन्ड के अलॉन्ग हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। इस चीज़ को भी नोट कर लें क्योंकि इसकी भी डिटेल आपने ऑर्गेनिक में जाके पढ़नी है। जस्ट ये याद रखें कि जब आपको हाइड्रोजिनेशन का वर्ड दिया जाए तो इट मीन्स के एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहाँ पर होगी, अलॉन्ग डबल बॉन्ड। अगर कहीं पर भी डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो वहाँ पर हो जाएगी। एंड दिस प्रोसेस इज़ यूज फॉर द हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स, यानी कि ऑयल्स को फ़ैट में कन्वर्ट करने के लिए। आप देसी घी नहीं, आप ये कहेंगे वेजिटेबल ऑयल से घी बनाने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। एंड दिस इज़ द रिएक्शन फॉर दैट पर्पज़ कि देखें लेफ़्ट हैंड साइड पर आपको जो नज़र आ रहा है एक ट्राई ग्लिसरेट या लिपिड, उसके अंदर डबल बॉन्ड शो किए जा रहे हैं, जबकि आप जो राइट हैंड साइड पर देख रहे हैं सॉलिड फैट जिसके नीचे लिखा हुआ है तो उसके अंदर डबल बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा है। इट मीन्स दिस इज़ अ हार्डनिंग ऑफ ऑयल, लिक्विड ऑयल इज़ कन्वर्टेड इनटू अ सॉलिड फैट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।